Good morning, friends. Statement of affairs method. दो सम्स कल ये कंप्लीट हो गया नहीं है? हाँ. What we do in statement of affairs method is we draw statement of affairs as at the beginning of the period and as at the end of the period. We get opening capital and closing capital. Difference between opening capital and closing capital, that difference is contributed by many items which we give effect in capital account. Certain capital increasing items, certain capital decreasing items. One of the items contributing to the difference between opening and closing capital is profit or loss, one of the factors. So all other items we need to reverse, बाकी के सारे items अपने को reverse करने पड़ेंगे. तो वो सारे इफेक्ट्स हम रिवर्स करते हैं और वो सारे इफेक्ट्स रिवर्स करके फिर अपन एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल ढूंढ लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल विल बी टेकन एज प्रॉफिट और लॉस. टू प्रॉब्लम्स वी सॉल्व यस्टरडे. लेट्स सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस पर्पज. मालू जी, आपको कल कुछ बोला था मैंने. क्या कल भी मूड नहीं था क्लास में बैठने का? पेशेंस खत्म हो गए थे? हाँ, तो लंच ब्रेक में मुझे पापा से बात होनी चाहिए बोल के बोला था मैंने, शायद क्लास में माइक पे. बात हुई नहीं. फिर आज क्लास कैसे अटेंड करने दे आपको? हाँ, पक्का? नहीं हुई आज बात तो? थर्ड प्रॉब्लम, पेज नंबर 170, प्रॉब्लम नंबर 3. The following is the balance sheet of Messrs. Extra, Yonki and Zodiac as on 31st December 2020. Sundry creditors, bills payable, capital, Extra, Yonki, Zodiac, current account, Extra, Yonki, cash in hand, cash at bank, sundry debtors, stock in trade, furniture and fittings, plant and machinery, current account, Zodiac. Extra, Yonki and Zodiac shared profits and losses in the ratio of 3:2:1 after charging interest on capital at 6% per annum. During 2021, the monthly drawings of the partners were Extra, Yonki, Zodiac. On 31st December 2021, the assets and liabilities of the firm were. You are to ascertain the profit or loss made by the firm in 2021 and show the balance sheet of the firm as on 31st December 2021. जो दो प्रॉब्लम कल सॉल्व किए उसके कंपैरिजन में ये सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है. ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम है एज कंपेयर टू द अर्लियर टू प्रॉब्लम्स. सिर्फ एक ही पॉइंट है कि करंट अकाउंट्स है. अब उसमें भी पार्टनरशिप का टॉपिक होने के बाद में कुछ कंफ्यूजन होने का वैसे कारण नहीं है, बट स्टिल यू माइट गेट कंफ्यूज्ड. फिर से एक बार बता देता हूँ कि व्हेन डू वी ओपन द करंट अकाउंट्स फॉर पार्टनर्स? When capitals are fixed, it means there can't be changes in capital, so we record the changes in current account. तो जो भी मेथड हमने कल डिस्कस की, जो दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, वी analyzed the difference between opening capital and closing capital. Here, instead of opening capital and closing capital, it will be difference between opening current account balance and closing current account balance, because capitals are going to remain fixed. There won't be any change in capital. Opening में fixed capital कितना है? 90,000. Total fixed capital in the opening is 90,000. Closing also it is going to be 90,000 only. So whatever change is going to happen, that will happen in current account. So instead of capital, just you have to take current account. That's it. Rest everything is very simple. Same method you have to follow. Let's solve it together. Just 1 minute, guys. Problem number 3rd, page number 170.
statement showing profit oblique loss for the year 2021. Statement showing profit oblique loss for the year 2021. Particulars rupees. More than half page. Statement of affairs as on 31st December 2021. Statement of affairs as on 31st December 2021. Liabilities rupees, assets rupees. Working note, partner's current account. Extra Yonki Zodiac. कैपिटल अकाउंट की जरूरत ही नहीं है कि तो व्हेन करंट अकाउंट्स आर देयर ऑल द इफेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट. Capitals will remain fixed.
अपन ऐसी गाड़ी चलाने को लेके मजाक करते या ऐसे ही क्लास में कभी बोल लेते. Yesterday a very unfortunate incident happened. Yes, a very young chartered accountant from who was practicing in Pune. और मेरे एक कलीग का ही ऑफिस वो रेंट पे लेके महीने भर पहले ही प्रैक्टिस वो नए ऑफिस में स्टार्ट किया था. स्वारगेट का ये जो ग्रेड सेपरेटर है नीचे नीचे का रास्ता जो है अंडरपास, वहाँ से सवेरे 11 सवा 11 बजे के करीब टू व्हीलर पे था वो. सीए सागर मंत्री, जस्ट 32 ईयर्स एज, 32 ईयर्स, 10 महीने की बच्ची है छोटी, एक लड़की. एमनोरा में रहता था, वहाँ से निकला था ऑफिस आने के लिए सदाशिवपेट में यहीं पे. और किसी व्हीकल ने उसको डैश दी या क्या मालूम नहीं, कार ने, वो तो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ. वो गिर गया नीचे, हेलमेट पहना हुआ नहीं था, सर पे इंजरी. एंड अनफॉर्चुनेट इतना 20-25 मिनट तक लोग वीडियो निकाल रहे थे, फोटो निकाल रहे थे, एंड नोबडी केम फॉरवर्ड टू हेल्प आउट, एंड ही एक्सपायर्ड ऑन द स्पॉट. 32 ईयर्स. कल सवेरे की बात है, 11:15 बजे यहीं पे स्वारगेट पे. तो 25 मिनट तक लोग देखते रहे, कोई आया नहीं हेल्प को. फिर पुलिस आए और पुलिस लेके गए पुणे हॉस्पिटल, बट बाय दैट टाइम ही वॉज नो मोर. दोनों चीज़ें हैं, शायद टाइम पे हेल्प मिल जाता तो शायद कुछ और होता. हेलमेट रहता तो भी, हेलमेट नहीं था. अपन ये चीज़ें बहुत कैजुअली लेते हैं. 32 की एज, सीए, वेरी अनफॉर्चुनेट. केयरफुली भाई, बारिश के दिन है. और क्या है ना, देखो, हंसी मजाक अपनी जगह है, दूसरे लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है. अपना खुद का तो कंट्रोल खुद के ऊपर तो रह सकता है ना. तो एटलीस्ट जो प्रिकॉशन हम ले सकते हैं वो तो लेनी चाहिए. सामने वाला क्या करेगा ये हम कुछ नहीं कर सकते. तो एटलीस्ट भाई अपन अपनी सेफ्टी लेके चले. जो टू व्हीलर पे आते हैं विदाउट हेलमेट के मत आओ भाई. क्या है ना, सर पे मार लगने के बाद में कोई भरोसा नहीं, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, वॉट कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई भरोसा नहीं क्या होता है. तो हेलमेट तो एटलीस्ट यूज करो जो भी टू व्हीलर पे आते हैं. बी केयरफुल. करे स्टार्ट. फॉर्मेट रेडी है? यस. गो टू करंट अकाउंट्स. Buy balance brought down. Extra 1440. Yonki. Zodiac has debit balance. To balance brought down. 15060. 1560. Extra Yonki and Zodiac shared profits and losses in the ratio of 3:2:1 after charging interest on capital at 6% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम बोला है, कुछ नहीं बोला तो ऑब्वियसली फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स्ड कैपिटल पे रहता है इंटरेस्ट. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारे पास फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस है दिए हुए प्रॉब्लम में. 6% करो कैलकुलेट. डोंट लुक एट मी, करो कैलकुलेट. 45,000 6%, 2,700, 1,800, 900 आया. During 2021, the monthly drawings of the partners were, monthly drawings, please highlight, underline, monthly है वो, per month है. Debit side to drawings, करो कैलकुलेट. 14,400, 10,800,
9,000, correct? 9,000. आया? Then on 31st December 2021, the assets and liabilities of the firm were cash in hand, asset side of statement of affairs as at the end. Cash in hand is 900. Stock in trade 30,600. Plant and machinery 75,000. Bills payable बिल्स रिसीवेबल है क्या? नहीं है. बिल्स पेएबल 7,200. Then sundry debtors 28,800. Furniture and fittings 5,000 and sundry creditors 5,000. Bank overdraft 18,000. Now कैपिटल बैलेंसेस फिक्स्ड है वो लिख दो. एक्स्ट्रा योंकी जोड़िया कितने कितने 45 30 15. टोटल 90,000. डोंट जस्ट कॉपी गाइज, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना और मेरे को बताओ अभी मिसिंग क्या रहेगा. इधर करंट अकाउंट के बैलेंसेस मिसिंग रहेंगे. टोटल एंड करंट अकाउंट्स asterisk mark balancing figure, asterisk mark balancing figure. Total is 147,000. 140,700. बोलो बेटा 15,300 पक्का सबका आया. Come to main statement.
closing current account balance as on 31st December 2021 जो अभी हमने ढूंढा कितना है 1500 15300। हाँ, अब कैपिटल डिक्रीजिंग आइटम्स क्या क्या है? कैपिटल डिक्रीजिंग आइटम्स आई सेड ड्राइंग्स है, सो दैट इज टू बी एडेड बैक। एड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। एक्स्ट्रा योंकी जोडियाक कितना कितना था? 14,400, 10,800, 9,000। आउटर कॉलम 34,200। सब टोटल 49,500। कैपिटल इंक्रीजिंग आइटम्स क्या है? लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स्ट्रा योंकी जोडियाक बोलो 2,700, 1,800। आउटर कॉलम therefore adjusted closing current account balance $44,100 आया आया लेस ओपनिंग current account balance। don't get confused, I'll show calculation in bracket। मेरे को बताओ किसका किसका कितना कितना बैलेंस था? एक्स्ट्रा का कितना था? 1440 प्लस 10 और जोडियाक का निगेटिव था तो लेस होगा। निगेटिव बैलेंस विल बी डिडक्टेड। बोलो क्या आता है? 900 रुपीज। therefore profit for the year 2021 therefore profit for the year बोलो 42 43,200। इनर कॉलम एक्स्ट्रा योंकी जोडियाक शेयरिंग क्या था? सो 3/6, 2/6, 1/6। बोलो 21,600, 14,400, 7,200 आया। समझा सबको क्या किया?
go to current accounts by profit for the year. कितना? 21,600, 14,400, 7,000, that's it. Close current accounts, get the closing balances. I think Extra and Yonki, they have credit balance, but Zodiac has debit balance. Zodiac का debit balance है बेटा. So to balance carried down, by balance carried down. Asterisk mark balancing figures. Is it 11,340 extra? Then 17,240 is the total. 220. 17,220 is the total. Balancing figure 6,420. What about Zodiac? Buy balance carried down. How much? 2,460. 2,460 आया क्या? टेक ऑन कैल्सी पे लो. 11,340 प्लस 6,420 माइनस 2,460. 15,300 आ गया बराबर करंट अकाउंट का बैलेंस जो हमने ऊपर ढूंढा था. चलो ऊपर अपडेट कर दो ना, बैलेंस शीट में अपडेट कर दो ना इंडिविजुअल बैलेंसेस. एक्स्ट्रा, योंकी, ज़ोडियाक. एक्स्ट्रा का कितना था? 11,340. योंकी 6,420. ज़ोडियाक का निगेटिव है, ब्रैकेट में लिखेंगे. बोलो 2,4 आया क्या? निगेटिव बैलेंस है तो ब्रैकेट में लिखा मैंने उसका ज़ोडियाक का. फिर वो बैलेंसिंग फिगर मैच नहीं होगा ना. बैलेंसिंग फिगर तुमने 15,300 लिया ना, तो फिर वो मैच नहीं होगा तुम अगर वो ज़ोडियाक का बैलेंस एसेट में डालोगे तो. ये कैलकुलेशन बाद में आया इंडिविजुअल, पहले बैलेंसिंग फिगर आया 15,300, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा अगर तुम एसेट में लिखने जाओगे तो. गॉट इट? अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन गाइज, इज दैट ओके? So statement of affairs is clear. Everyone, statement of affairs is clear. Method 2, मेन मेथड जो है वो अब है. ये तो सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था. मेथड 2, conversion of single entry
into double entry records. कल जैसे मैं आपको समझा रहा था लास्ट के 2 लेक्चर्स में कि एग्जैक्टली क्या किया जाएगा इस मेथड में, तो इस मेथड में हम लोग दिए हुए इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी, इनकम्प्लीट है बट कुछ इन्फॉर्मेशन है ना, तो जो इन्फॉर्मेशन है उस बेसिस पे जो मिसिंग है वो ढूंढते जाएंगे, एंड मिसिंग है वो ढूंढ के प्रॉपर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बैलेंस शीट बनाया जाएगा. वंस अ प्रॉपर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो वो डबल एंट्री के रिकॉर्ड्स बन गए ना, अगले साल के लिए वो बेस हो जाएगा. इस साल अपने पास टैली ट्रायल बैलेंस नहीं है, बट इस साल अगर हम प्रॉपर ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बना लेंगे तो अगले साल के लिए वो बेस बोल के काम हो जाएगा. सो दिस इज कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री. तो कोई 2 प्रॉब्लम सेम नहीं रहने वाले यहाँ पे. कोई प्रॉब्लम में कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दूसरे प्रॉब्लम में कुछ और दिया हुआ है. एक प्रॉब्लम में जो मिसिंग है वो अगले प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा, पहले प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है वो अगले प्रॉब्लम में मिसिंग रहेगा. तो उस पर कोई ऐसा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम तो अपन कर ही नहीं सकते. क्यों, तो मैंने आपको बहुत बार बहुत डिटेल में समझा दिया कि कंप्लीट को समझाना आसान है, इनकम्प्लीट को कैसे समझाए. इनकम्प्लीट तो बहुत वास्ट हो गया ना, जो कंप्लीट नहीं है वो इनकम्प्लीट है. तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी डिफाइन करना बहुत मुश्किल है भाई. पूरा डिफाइन कर सकता हूँ मैं, पूरा क्या क्या रहता है, और पूरे में एक चीज़ भी नहीं है तो वो इनकम्प्लीट हो गया ना. तो इसमें यही करना है अपने को कि दी हुई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है जो नहीं दी है वो ढूंढते जाना है, और वहाँ पे आपका अकाउंटिंग माइंड ही काम आएगा. आप वहाँ पे ऐसे वैसे बैठ के सोचोगे क्या करेंगे एंड कैसे होगा, तो कुछ नहीं होगा. आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में शायद डेटर्स का एग्जांपल दिया कि डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, उसके क्रेडिट सेल्स दिए हुए, बैड डेट्स दिए हुए, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो कलेक्शन मिसिंग है. ये कलेक्शन मिसिंग है ये समझना पड़ेगा ना. उसके लिए डेटर्स के अकाउंट को एनालाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि डेटर्स में क्या क्या आता है, डेटर्स में क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं ये सोचना पड़ेगा. अब वैसे ही क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन है समझो, तो क्रेडिटर्स में आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस डालना पड़ेगा कि यार क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्या क्या इफेक्ट आते हैं. ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तो है, क्रेडिट परचेसेस भी दिए, वो भी दिए प्रॉब्लम में क्रेडिट परचेसेस, तो फिर क्या मिसिंग है. पेमेंट पेमेंट विल बी मिसिंग. क्या, तो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग में कितना पेबल है वो दिया है, क्लोजिंग में कितना पेबल है वो दिया है, इस साल कितना क्रेडिट परचेस हुआ है वो दिया है, तो फिर क्या बचता अकाउंट में. पेमेंट विल बी मिसिंग. सो पेमेंट मिसिंग है ये समझ में आना पड़ेगा. तो लाइक दिस यू हैव टू गो ऑन सर्चिंग द मिसिंग इंफॉर्मेशन. वैसे जैसे मैं बता रहा था कि कोई 2 प्रॉब्लम सेम है नहीं, बट फिर भी अगर मेरे को आंसर को, सोल्यूशन को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करना है तो टू सम एक्सटेंट आई कैन स्टैंडर्डाइज इट. Like we'll be preparing trading and P&L account, we'll be preparing balance sheet under this method, and along with this certain supporting working notes we are going to prepare. अब ये working notes क्या बनेंगे ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा, बट कुछ स्टैंडर्ड वर्किंग नोट्स फिर भी हम नॉर्मली हर प्रॉब्लम में बनाते हैं. जैसे हर प्रॉब्लम में अगर प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी है तो वो बनानी पड़ेगी. क्यों, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के बगैर वी वोंट गेट ओपनिंग कैपिटल. So to get the opening capital, you have to prepare opening balance sheet. If it is given in the problem, then we won't prepare it. But otherwise, we have to prepare it. So opening balance sheet we will be preparing. In each and every business, there are going to be transactions of purchases and sales. And normally we see that these transactions are on credit basis. So we will be having debtors and creditors account. In almost all the problems, we will have debtors and creditors accounts as working notes. If it is given in the problem that the sales are only on cash basis, then there is no question of having debtors account, because only cash sales are there, मतलब debtors नहीं है. So debtors creditors के account अपन बनाएंगे, opening balance sheet हम बनाएंगे. No need to say we need cash book. ये तो transactions तो payment receipt तो रहने वाले हैं, तो we will be preparing cash book. Now this cash book will be either single column or double column. It depends on what information is given in the problem. If cash and bank transactions are given separately, we will have 2 columns.
If cash and bank transactions are not given separately, we will have single column cash book, either single column or double column depending on information. And guys, one more account we will have, we normally prepare, and that is capital account. Because drawings are recorded in capital, net profit is recorded in capital, net loss is recorded in capital, and most important thing, after recording all necessary information given in the problem, if there is difference in cash, that difference will always be adjusted in capital. If there is short cash, then we will assume drawings. We will assume drawings. अगर कैश शॉर्ट आया, सब दिया हुआ इन रिकॉर्ड कर दिया, तो टैली होना चाहिए, टैली नहीं हो रहा है, 500 रुपये शॉर्ट है कैश, तो यू विल अज्यूम ड्राइंग्स है. कई बार ऐसे भी होगा कि एक्सेस कैश है अपने पास, so that will be capital introduced, additional capital introduced. So that adjustment we need to make in cash, in capital. So we will be having capital account also. Wherever necessary, you have to make logical and rational assumptions. Very important, logical and rational assumptions. It is quite possible incomplete information है, तो बहुत बार ऐसे होगा कि यार पूरा सॉल्व किया करेक्ट, फिर भी ये अकाउंट टैली नहीं हो रहा, तुमको फिर वहाँ पे अजम्पशन करना पड़ेगा कुछ, और वो अजम्पशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपना टैली नहीं हो रहा तो कुछ तो अजम्पशन कर लो कि द गिवन प्रॉब्लम इज रॉन्ग सो देयर इज डिफरेंस. ऐसे नहीं रहता. You have to make some logical and rational assumption if necessary, and you have to complete the problem. So these standard 5 working notes we are going to have in almost all the problems: opening balance sheet, debtors account, creditors account, cash book, either single column or double column, and we will be having capital account. Other than these 5, some more are going to be prepared as working note, but that depends on problem. प्रॉब्लम में क्या इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. कई बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट रहेगा, वी विल बी ड्रॉइंग एक्सपेंसेस अकाउंट. कई बार दिया रहेगा कि रेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट है, तो वी विल बी ड्रॉइंग रेंट अकाउंट. सो डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम एंड इन्फॉर्मेशन, एडिशनल वर्किंग नोट्स विल ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, बट these 5 are normal standard working notes which we prepare for each and every problem. लिखो. Under this method, under this method comma, on the basis of information given in the problem, on the basis of information given in the problem, trading and profit and loss account, trading and profit and loss account and balance sheet will be prepared, and balance sheet will be prepared full stop. To find out missing oblique incomplete information following accounts are usually drawn
as working notes, as working notes. Number 1, opening balance sheet, opening balance sheet, bracket, if not given in the problem, ब्रैकेट में लिखो if not given in the problem. Number 2, debtors account, debtors account. Number 3, creditors account. Number 4, cash book. Bracket, either single column or double column. Either single column or double column. Number 5, capital account. Capital account. Number 6, any other accounts, any other accounts depending on the adjustments given in the problem, depending on the adjustments given in the problem. लिख दिया? बहुत बार बोल दिया मैंने कि ये प्रॉब्लम समझाने बहुत मुश्किल है, बोल तो स्ट्रक्चर समझाना बहुत मुश्किल है कि तो कुछ भी आ सकता, कैसे भी आ सकता, तो जब तक अपन सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक आइडिया नहीं आएगा। एक बार फिर बता रहा हूँ कि टॉपिक अगर आप मेरे हिसाब से मेरे जैसे मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से अटेंटिव रहते हुए समझोगे तो आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये बहुत ही बढ़िया, ये इसकी प्रैक्टिस करते रहे, और ये होता है। और अगर तुम इसको ध्यान नहीं दोगे और बस कॉपी करने का काम करोगे, झेपेगाच नहीं, कुछ भी कर लो, क्या कर रहे सर, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे, कुछ कुछ नहीं समझेगा। सो प्लीज़ कीप योर सेल्फ कंप्लीटली इन्वॉल्व इन द सोल्यूशन। कहीं पे भी लगता है कि नहीं ध्यान में आ रहा है तो तुरंत पूछो मेरे को, बिना समझे हुए एक भी फिगर अपने को लिखनी नहीं है, बिना समझे। तो हर चीज़ समझते हुए ही लिखेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं है, अपने को आराम से कंप्लीट करेंगे अपन, ठीक है। कम टू पेज नंबर 172, fifth problem, fifth. The following information is supplied from which you are required to prepare a trading and P&L account for the year end date 31st December 2021 and balance sheet as on that date. Assets and liabilities, sundry assets, stock, cash in hand, cash at bank, debtors, creditors, miscellaneous expenses outstanding, details relating to year's transactions, receipts in the year and discount credited to debtors, return from debtors, bad debts, sales, cash and credit, return to creditors, payment to creditors by check, receipts from debtors deposited into bank,
cash purchases, salaries and wages paid out of bank, miscellaneous expenses paid by cash, drawings by cash, purchase of sundry assets by check, cash withdrawn from bank, cash sales deposited in bank, discount allowed by creditors. अब देखो, ना प्रॉपर ट्रायल बैलेंस दिया है ना कुछ दिया है, कुछ ट्रांजैक्शंस दे दिए साल भर में हुए साल के बिगिनिंग के कुछ एसेट्स दिए, कुछ लाइबिलिटीज़ के डिटेल्स दिए, साल के एंड के भी वैसे एसेट्स लाइबिलिटीज़ की डिटेल्स है, और अपने को बोल रहे साल भर का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाओ। अगर आपको आपके 11th-12th के फाइनल अकाउंट्स या अभी जो हमने सॉल्व किए प्रॉब्लम्स फाइनल अकाउंट्स में वो याद आ रहे हैं, तो उसमें क्या था ना, प्रॉपर ट्रायल बैलेंस रहता था, एक टैली ट्रायल बैलेंस, और उसके एडजस्टमेंट्स होते थे। तो ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हम कर देते थे एक इफेक्ट के साथ, एडजस्टमेंट्स अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन से तो उसके दो इफेक्ट देते थे, और प्रॉपर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनता था। वहाँ पे प्रॉब्लम था नहीं कि तो पूरी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मिसिंग है फिगर्स, और जो दिया है वो भी पूरा ऐसा है नहीं, जो दिया उसमें भी मिसिंग है कुछ कुछ चीज़ें, वो अपने को ढूंढनी पड़ेगी। एंड देन वी नीड टू कंप्लीट द प्रॉब्लम बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट. So let's solve this first problem. I am sure you will enjoy, provided you involve yourself in the solution. नहीं तो फिर तो जयराम जी के है ही ना. Trading and profit and loss account. For the year ended 31st December 2021. For the year ended 31st December 2021. मोर देन हाफ पेज लग जाएगा बेटा. More than half page. Particulars rupees, particulars rupees. Balance sheet as at 31st December 2021. Just for 8 lines. Balance sheet 8 lines.
जितना मेन आंसर है ना, मेन आंसर की हेडिंग लिखते हैं अपन यूजुअली, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, मेन आंसर। वर्किंग नोट्स में हेडिंग नहीं भी लिखा तो चलेगा, नॉर्मल फॉर्मेट से ड्रॉ कर लो। हम्म। हाँ, वर्किंग नोट्स। क्यों, तो इतना टाइम एग्जाम में रहेगा नहीं कि आप हर हेडिंग लिखते बैठोगे। सब लोग चेक करो बेटा प्रॉब्लम में, मेरे को बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है क्या। जो लोग हाँ बोल रहे हैं, आपको स्टडी मटेरियल अलग दिया है क्या मैंने कुछ। कहाँ पे दिया रे ओपनिंग बैलेंस शीट, कहाँ दिख रहा तुमको बैलेंस शीट प्रॉब्लम में यार। हाँ, किधर है। हाँ बोल रहे आप, कहाँ है बैलेंस शीट ओपनिंग। ये देखो प्रॉब्लम नंबर 5, पेज नंबर 172। एक ना बुक दी रहेंगी तुमको जब तुमने एडमिशन लिया है, जिसपे ना फ्रंट पेज पे मेरा फोटो है, बैक पेज पे भी शायद मेरा फोटो है। देखो तो ऐसे दिख रहा है क्या कुछ, ये ऐसा बुक। ये देखो ये ऐसे। हाँ, तो ये स्टडी मटेरियल में प्रॉब्लम नंबर 5 है, सिंगल एंट्री का टॉपिक है, पेज नंबर 172 पे। उसमें देखो वाला कहाँ दिख रहा है तुमको ओपनिंग बैलेंस शीट, है क्या। नहीं है ना, हाँ तो बनाना पड़ेगा और। एज एट 31 दिसंबर 2020, पिछले साल का ना। 6 7 लाइन्स। देन sundry assets account, five lines. Five lines. Then cash book, चेक करो प्रॉब्लम में कैश एंड बैंक अलग अलग है क्या, अलग अलग है ना। हाफ पेज 2 कॉलम्स।
Debtors, 6-7 lines. Debtors account. Debtors account, 6-7 lines. Creditors account, 6-7 lines. मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, उसमें एडजस्टमेंट है इसलिए वो अकाउंट. क्या बोल रहा? 40 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए आएगा ये एग्जाम में. पहला प्रॉब्लम इसलिए ऐसे लग रहा है, फॉर्मेट हो रही है. miscellaneous expenses account. Then finally capital account. Capital account, 5 lines. Ready format? करे स्टार्ट. बीइंग फर्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? देखो कुछ नहीं, मैं प्रॉब्लम के फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक जाऊंगा पढ़ते पढ़ते. रास्ते में जो जो मिलेंगे सबको मिलते हुए जाऊंगा. उनके जो जो इफेक्ट्स हो सकते हो सारे इफेक्ट्स देते जाएंगे अपन. कुछ नहीं, 11th में जो बेसिक हमने जर्नल एंट्रीज किए हुए हैं, ऑब्वियसली अगर आप कॉमर्स में थे तो, साइंस वाले कुछ भी सीखते. सो अगर कॉमर्स में थे तो बेसिक जर्नल एंट्रीज किए हुए, बस वो जर्नल एंट्रीज के इफेक्ट्स देते जाना है अपने को. यस. Following information is supplied from which you are required to prepare trading and P&L account for the year ended 31st December 2021 and balance sheet as on that date. Assets and liabilities. One column is of 1st January 2021. 1st January 2021 means it is last year's closing balance. Current year's opening balance means last year's closing balance. So first column is of opening assets and liabilities and second column is of closing assets and liabilities.
बार बार पेज पलटना ना पड़े इसलिए एक काम करते, ओपनिंग एसेट्स लायबिलिटीज पूरे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में ले लेते। चलो लाइन से बताओ, बोलो ना क्या क्या है। डोंट सिट लाइक डम स्टूडेंट्स, थोड़ा इन्वॉल्व हो क्लास में, आंसर्स दो। कहाँ पे आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में बोल तो वर्किंग नोट नंबर 1, क्रेडिट साइड नहीं रे, एसेट साइड। सेम कैसे? हाँ, ऐसे कुछ भी बोलेगा ना, बोलेगा सेम है, ऐसे कैसे चलेगा? सन्ड्री एसेट्स, स्टॉक, कितना है स्टॉक? स्टॉक स्टॉक 14,000 आया। आना क्या है, दिया है वो। कैश, कैश इन हैंड किती आहे बाळांनो? 8,200। ज्यांना मराठी कळत नाही त्यांच्यासाठी 8,200। कैश एट बैंक 2,200। डेटर्स, कीप इट ब्लैंक, डोंट पुट क्वेश्चन मार्क। नहीं तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन मार्क दिया है, दे दो क्वेश्चन मार्क। ढूंढना है, वो मिसिंग है। क्रेडिटर्स किधर? क्या बात है यार, होशियार बच्चे थे तुम लोग। क्रेडिटर्स 12,000। वेयर डू यू टेक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है? 1,000। So we posted opening assets and liabilities. Similarly, अगला कॉलम है 31st December 2021. So those are closing assets and liabilities, and we are preparing closing balance sheet also. So now come to closing balance sheet. Sundry assets 2020. Oh. Stock 19,000. Cash in hand 4,800. Cash at bank 18,000. Creditors, liability में creditors 9,800. Outstanding miscellaneous expenses बोलो बेटा 600. We have written the assets and liabilities in the opening and closing balance sheets. Now let's give their effects one by one. सबसे पहला क्या है? सन्ड्री एसेट्स, उसमें एडजस्टमेंट है इसलिए अकाउंट बनाया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस, कौन सा बैलेंस है एसेट्स में? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है? 18,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। क्रेडिट साइड लास्ट लाइन बिफोर टोटल, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस जो दिया है वो कितना? 20,000। बरोबर। What about
Next item, stock. Now, last year's closing stock is current year's opening stock. Where do you take the opening stock for the current year? सोचो ना, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लेते हैं अपन? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लेते। सो ट्रेडिंग अकाउंट में आओ, टू ओपनिंग स्टॉक। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही लिखो, आगे मत जाना। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 1,14,000। जैसे ओपनिंग स्टॉक आया वैसे क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, विच विल बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। बट वेट 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 वेट, अपने को ना क्रेडिट साइड में जगह लगने वाली है, क्यों? तो सेल्स में कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, सेल्स रिटर्न लेस होंगे, ये सारे कैलकुलेशन दिखाने पड़ेंगे। तो एक काम करो आप, एक 5-6 लाइन छोड़ दो और फिर लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 19,000। वेयर टू टेक द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस? बैलेंस शीट में तो ले लिया हमने, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस रहेगा। ध्यान में आ रहा है आपको अपन क्या कर रहे हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम 8,200, बैंक कॉलम 2,200, बरोबर। वेयर विल यू राइट द क्लोजिंग बैलेंस? क्रेडिट साइड लास्ट लाइन बिफोर टोटल, टोटल के पहले के लास्ट लाइन पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अपन दी हुई इंफॉर्मेशन की पोस्टिंग कर रहे हैं बस। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, हाउ मच? 4,800, 8,000, करेक्ट। डेटर्स, ओपनिंग इज मिसिंग, ओपनिंग है नहीं अपने पास दिया हुआ, तो ओपनिंग ब्लैंक ही रहेगा। क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्रेडिट साइड लास्ट लाइन बिफोर टोटल। बोलो। जेपे नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। प्लीज टेल मी, क्रेडिटर्स में कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस इज गिवन, क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, टू बैलेंस carried down 9,800। मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब मेरे को बोलो साल के एंड में लास्ट ईयर क्या एंट्री रहेंगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की? अब ये फाइनल अकाउंट्स में मैं सिखा चुका हूँ, आपको बोला भी था ये 4 एडजस्टमेंट बार बार आएंगे सिंगल एंट्री में इसमें। वेरी गुड। तो लास्ट ईयर के एंड में क्या एंट्री हुई रहेगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। दिस ईयर बिगिनिंग दिस एंट्री इज रिवर्स्ड। व्हाट इज द रिवर्सल एंट्री? Outstanding expenses account debit to expenses account. You have expenses account credit side first line, because this is reversal of last year's entry. ये opening reversal है by लिंक खत्म हो गया। लिखो आप, क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन by outstanding expenses, credit side first line in miscellaneous expenses account by outstanding expenses 1,000। ये तो हो गया पिछले साल का रिवर्सल। अब इस साल के एंड के कितने हैं आउटस्टैंडिंग?
600, तो इसकी एंट्री क्या होंगी साल के एंड में? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट साइड लास्ट लाइन बिफोर टोटल टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 600, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 600। लिखा? सबको समझा? Details relating to year's transactions. अब opening assets liabilities we wrote in balance sheets, we posted them in necessary accounts. Now details relating to year's transactions. Receipts in the year and discount credited to debtors account 2,45,000. 1 minute. 1 minute. What is the entry for receipts from debtors? Journal entry क्या होती है? Cash or bank account debit to debtors account. Correct? What is the entry for discount allowed to debtors? Discount allowed account debit to debtors account. So collection from debtors and discount allowed to debtors both are credited to debtors. But whatever amount is collected, that is debited to cash book, and whatever discount is allowed, that is expense for us, which will be ultimately debited to P&L account. प्रॉब्लम क्या हुआ है? देते वक्त उन्होंने ना कंबाइन फिगर दी है, रिसीट्स इन द ईयर एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स 2,45,000, तो कलेक्शन और डिस्काउंट मिला के 2,45,000 है ना। बट मुझे तो अकाउंटिंग करने के लिए दोनों फिगर सेपरेट चाहिए ना, क्यों? तो 2,45,000 में से जितना कलेक्शन हुआ है दैट विल गो टू कैश बुक, एंड जितना डिस्काउंट वाला हुआ है वो बीइंग एक्सपेंस P&L को डेबिट होगा। सो आई नीड बाइफर्केशन ऑफ 2,45,000। तो अभी के लिए तो अपने को इतना मालूम है कि कलेक्शन प्लस डिस्काउंट पुट टुगेदर इज 2,45,000, बट हाउ मच इज द कलेक्शन एंड व्हाट इज द डिस्काउंट वी डोंट नो एज ऑफ नाउ। सो कैन वी अकाउंट फॉर दिस नाउ? नो, वी कांट। तो अपने को ढूंढना पड़ेगा वो। पेंडिंग रखो इसको, कीप इट पेंडिंग। रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, सेल्स रिटर्न्स। रिटर्न फ्रॉम डेटर्स इज sales return. Guys, please tell me the journal entry for credit sales. Debtors account debit to sales account, sales return. Sales return account debit to debtors account. Debtors account credit side by sales return. Debtors account credit side by sales return. How much it is? 6,000. 6,000। ये एक इफेक्ट हो गया कि डेटर्स में से हमने लेस कर दिया। सेल्स रिटर्न का सेकंड इफेक्ट आप फाइनल अकाउंट्स में क्या देते? ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से लेस करते। सो गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये देखो स्क्रीन पे देखो, बाय सेल्स कैश क्रेडिट, कीप इट ब्लैंक, वी डोंट नो राइट नाउ, अपने को मालूम नहीं अभी कितना कितना है। सब टोटल अगेन इट इज ब्लैंक, लेस रिटर्न्स। कितने रिटर्न्स है? 6,000 के रिटर्न्स है। समझा क्या किया? समझा क्या किया? By sales cash credit, keep it blank, subtotal also blank, less returns. Done? Everybody? एक मिनट, इंक खत्म हो गया था, वो लिखना रह गया ना। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना था? कितना था? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो रिवर्स किया वो 1,000, एंड डेबिट साइड लास्ट लाइन बिफोर टोटल वो कितना था?
और एक इफेक्ट दिया था डेटर्स के अकाउंट में बाय सेल्स रिटर्न्स। यहां तक किसी को कोई डाउट? फिर से एक बार बोलता हूं, व्हाट इज द एंट्री फॉर क्रेडिट सेल्स? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न हुआ तो sales return account debit to debtors account. So that second effect is debtors account credit side by sales return 6000 and sales return will be deducted in final accounts from total sales जो trading account के credit में हमने लिया. Any problem? Any problem? Bad debts. What is the journal entry for bad debts? Bad debts to debtors. Go to debtors account. How much? 1000. Second effect of bad debts, P&L account debit side because it is loss for us. Go to P&L account. एक मिनट रुको, ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़ी जगह छोड़ो बेटा, क्यों तो अपने को परचेसेस के भी सारे डिटेल्स लिखने हैं, तो एक 6-7 लाइन ब्लैंक रहने दो ट्रेडिंग अकाउंट में, और फिर P&L अकाउंट में लिखो टू बैड डेट्स. कितना? 1000. आया? नेक्स्ट आइटम इज सेल्स कैश एंड क्रेडिट, मीन्स टोटल सेल्स की फिगर आ गई है. तो अभी टोटल सेल्स को तो हम अकाउंट फॉर नहीं कर सकते कि तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री अलग होती है, कैश सेल्स की अलग होती है, बट टोटल सेल्स लिख तो सकते हैं ना हम, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं ना हम. तो ट्रेडिंग अकाउंट में सब टोटल है, कितना लिखूं? 3 लाख. अब मेरे को बताओ रिटर्न 6000 लेस होके आउटर कॉलम कितना आएगा? 294,000. झेपया? कुछ नहीं, दिए हुए फिगर सिर्फ लिखते जा रहा हूं मैं. एनी प्रॉब्लम? रिटर्न्स टू क्रेडिटर्स मीन्स परचेस रिटर्न्स. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिट परचेसेस? परचेसेस टू क्रेडिटर्स. परचेस रिटर्न्स creditors to purchase returns. Go to creditors account to purchase returns. How much? To purchase returns 3000. Second effect, purchase returns, what do we do in final accounts? We deduct from purchases. Go to trading account. सेम जैसे सेल्स का प्रेजेंटेशन किया था वैसे ही परचेसेस, कैश, क्रेडिट, सब टोटल, लेस रिटर्न्स 3000. Are you with me? सब लोग? पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय चेक, जर्नल एंट्री. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट है. सो व्हाट इज द एंट्री? Creditors account debit to bank account. Go to creditors account. To bank account. How much? 236, 200. Second effect. Second effect. Cash book by creditors. Bank column 236, 200. Correct? Receipts from debtors deposited into
बैंक, डेटर्स से जो कलेक्शन हुआ जो बैंक में डिपॉजिट हुआ है, बैंक में डिपॉजिट हुआ है, डेटर्स का कलेक्शन मतलब चेक से आया बेसिकली। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक कॉलम 2,43,000. Second effect, debtors credit side by 2,43,000. मैं जो बोल रहा था ना आपको कि आपको अपने आप को इन्वॉल्व रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे को बोलो, पहला वाला आइटम हमने पेंडिंग रखा था, पढ़ो वापिस क्या था वो, रिसीट्स इन द ईयर एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स। बोल तो कलेक्शन प्लस डिस्काउंट मिला के कितना था, 2,45,000। तो उसमें से कलेक्शन की फिगर आ गई, कितनी है कलेक्शन की फिगर, 2,43,000 मीन्स 2,000 इज द डिस्काउंट अमाउंट। गॉट इट। तो कैसे मिसिंग इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, समझ में आ रहा है। व्हाट इज द एंट्री, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट बाय discount allowed 2,000. Now what is it for us, discount allowed, expense. Where to take, P&L account. Go to P&L account, ना 2,000. फिर कैश परचेसेस, एंट्री परचेसेस टू कैश, गो टू कैश बुक बाय purchases, cash column, how much, 10,000. Second effect of purchases, trading account, go to cash purchases 10,000, correct. Salaries and wages paid out of bank, entry salaries and wages account debit to, go to cash book by salaries and wages, which column, how much, 18,000. Second effect, P&L, salaries and wages है P&L. Got it? Miscellaneous, salaries are predominant. Salaries पहले लिखा है मतलब salaries are predominant, so it will be taken in P&L. If it would have been wages and salaries, wages would have been predominant, then it will be taken in trading account. Miscellaneous expenses paid by cash, entry miscellaneous expenses account debit to cash account, cash book by miscellaneous expenses, cash column 5,000. Guys, there was adjustment, so we have drawn miscellaneous expenses account, डेबिट साइड सेकेंड लाइन टू कैश अकाउंट, कितना पे हुआ है 5,000. झेपा क्या, डायरेक्टली P&L में नहीं लेंगे हम क्यों, तो इसमें एडजस्टमेंट है. देन ड्राइंग्स बाय कैश, एंट्री ड्राइंग्स टू कैश, कैश बुक बाय
हाउ मच? 9,000. सेकेंड इफेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स ट्रेडिंग में कैश ड्रॉइंग्स है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज नहीं है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज रहा तो ट्रेडिंग में आता है। कैश ड्रॉइंग्स क्या करेंगे? कैपिटल में से लेस होता है, सो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू ड्रॉइंग्स। बोलो बेटा। 9,400, 9,400। परचेस ऑफ सन्ड्री एसेट्स बाय चेक, जर्नल एंट्री। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यू हैव सन्ड्री एसेट्स अकाउंट ड्रॉन। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट बनाया हमने टू बैंक अकाउंट। कितना? 2,000। सेकेंड इफेक्ट बोलो बेटा। सेकेंड इफेक्ट कैश बुक बाय बैंक कॉलम 2,000, करेक्ट आया। देन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इट इज कॉन्ट्रा एंट्री। व्हाट इज द एंट्री? कैश टू बैंक। कैश बुक डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, C in circle. Don't write C in circle, draw C in circle. आधे लोगों को तो समझा ही नहीं क्या बोले सर। मैं यही प्रॉब्लम था, क्लास में सॉल्व कर रहा था और फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए एक स्टूडेंट ने, मतलब ऐसा कुछ नहीं जानबूझ के नहीं, बट वो फ्लो में क्या हुआ, उसने मैंने बोला कि टू बैंक अकाउंट सी इन सर्कल, तो उसने ना टू बैंक अकाउंट आगे लिख दिया सी इन सर्कल। फ्लो में हाँ, तो उसको ये ध्यान में नहीं आया कि वो सी इन सर्कल हो तो कॉन्ट्रा करना है। वी लिटरली रोट सी इन सर्कल, तो उसका कहाँ ध्यान था क्या मालूम, किसके ख्यालों में डूबा था। टू बैंक अकाउंट सी इन सर्कल, कैश कॉलम 20। सेकेंड इफेक्ट बाय कैश अकाउंट क्रेडिट साइड सी इन सर्कल, बँकेच्या रकान्यात, सॉरी बैंक कॉलम 21,000। बँकेचा रकाना कळेल काय ना? हाँ जी सर, बनाइए आप एलएफ कॉलम। हाँ, ढोक रहे। कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन बैंक, जो कैश सेल्स हुए वो बैंक में डिपॉजिट हुए वो मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क है, अभी कुछ नहीं कर सकते, रहने दो पेंडिंग। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, बोल तो फॉर अस इट इज डिस्काउंट अर्नड, एंट्री। डिस्काउंट अर्नड अपने लिए इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होगा, और क्रेडिटर्स को उतना पैसा हम कम देंगे, तो व्हाट इज द एंट्री? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अर्नड। क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिटर्सच्या डेबिटला टू डिस्काउंट अर्नड 4,000 लिखा क्या? सेकेंड इफेक्ट इनकम है अपने लिए, जीपी के लिए एक लाइन ब्लैंक छोड़ो पी एंडल में, बाय डिस्काउंट अर्नड 4,000 आया। दी हुई सारी इंफॉर्मेशन की पोस्टिंग कर दी हमने, जो जो जर्नल एंट्रीज हो सकते, जो जो इफेक्ट दे सकते वो सब दे चुके अपन। दी हुई इंफॉर्मेशन पूरी हो गई, यहां तक तो जम जाता है बेटा, इसी के आगे मेन सॉल्यूशन है। अब जो मिसिंग है वो ढूंढते जाना है,
और ये प्रॉब्लम कंप्लीट करना है अपने को। अब यहाँ पे तुम्हारा दिमाग कितना चलता है उसके ऊपर समझेगा कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा। वन बाय वन वी हैव टू गो ऑन क्लोजिंग द वर्किंग नोट्स। ओपनिंग बैलेंस शीट यूजुअली हम लास्ट वर्किंग नोट बोल के क्लोज करते हैं। अगला अकाउंट कौन सा है? सन्ड्री। ओपनिंग कितना था? एडिशन कितना हुआ? 2000 और क्लोजिंग में 20,000 बराबर दिया हुआ है, तो ये अकाउंट तो टैली हो गया यहीं के यहीं। तो इसमें अब और कुछ बचा है क्या? नो, सो दिस इज टैलीड। गॉट इट? गॉट इट? नाउ कैश बुक इज देयर। कैश बुक, प्रॉब्लम ये है कैश बुक में, कैश कॉलम में दो फिगर्स मिसिंग है। ये पहला प्रॉब्लम है इसलिए मैं बता रहा हूं डायरेक्टली, अगले प्रॉब्लम से मैं तुमको पूछूंगा क्या मिसिंग है। कैश कॉलम में दो फिगर्स मिसिंग है। कैश सेल्स इज मिसिंग, कैश सेल्स, एंड दैट कैश सेल जो भी हुआ वो बैंक में डिपॉजिट हुआ है ना। जो भी कैश सेल हुआ है दैट इज डिपॉजिटेड इन बैंक। सो कैश सेल्स दैट वन फिगर and that deposited in bank is other figure. Two figures are missing. If two figures are missing, can we close the column? नहीं ना, एक ही फिगर मिसिंग चाहिए तो क्लोज हो सकता है, फिर बैलेंसिंग फिगर आता है। दो फिगर मिसिंग है तो क्लोज नहीं हो सकता। बैंक की बात करें, बैंक की, तो बैंक में क्या मिसिंग है? एक ही फिगर मिसिंग है। विच वन? कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन बैंक। बाकी सब तो जो दिया था लिख दिया ना। तो बैंक कॉलम क्लोज हो सकता है क्या? बैंक कॉलम क्लोज हो सकता है ना, क्यों? तो वहां पे एक ही फिगर मिसिंग है और वो फिगर का एक ही है, कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन बैंक। व्हाट इज द एंट्री फॉर कैश डिपॉजिटेड इन बैंक? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि बैंक कॉलम हम पहले क्लोज करेंगे टू कैश अकाउंट, सी इन सर्कल, कॉन्ट्रा एंट्री है ना, और बैंक कॉलम में एस्ट्रिस मार्क। अब ये एस्ट्रिस मार्क अगर तुमने अभी नहीं दिया तुम्हारे नोटबुक में, तो बाद में तो तुम सेल्फ स्टडी में कुछ भी कर लो, तुम नोटबुक फाड़ के फेंक दोगे फ्रस्ट्रेट होके, झेपेगा ही नहीं कैसे आए। तो मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था इस टॉपिक में एस्ट्रिस मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिगर बैलेंसिंग फिगर है, ये बाद में झेपेगा नहीं ना, नहीं तो तुमको, इसलिए स्टार मार्क में जहां बोल रहा हूं एस्ट्रिस मार्क देना, वो बैलेंसिंग फिगर है। बताओ बैंक का टोटल करो, टोटल टू 85 200 285 200। So what is the missing figure? मिसिंग फिगर कितनी है? 40,000 है। बोल तो कितना कैश डिपॉजिट हुआ बैंक में? 40,000। इसका सेकंड इफेक्ट इस एंट्री का, बाय बैंक अकाउंट सी इन सर्कल, कैश कॉलम 40,000। अब एस्ट्रिस मार्क मत देना, ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है यहां पे, झेपा क्या? कैन वी क्लोज कैश कॉलम नाउ? क्या मिसिंग है? कैश सेल्स मिसिंग है। क्या एंट्री होती कैश सेल्स की? कैश अकाउंट डेबिट टू, सो टू सेल्स अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर इन कैश कॉलम नाउ। टोटल 69 टोटल ना। हाँ, और मिसिंग फिगर 40,000। अरे 40,000 ही आने वाला ना रे, क्या? तो कैश सेल्स ही तो बैंक में डिपॉजिट हुए ना। आया क्या? क्या नहीं आया? अरे पूरा तो लिखा है मैंने सामने, और क्या है? देख कहाँ क्या रह गया तेरा। कैलसी के पूरे पैसे दिए ना,
आया क्या सबका? गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, कैश सेल्स कितने? 40,000। अब देखो कैसे मिसिंग फिगर मिलते जाते हैं। टोटल सेल्स कितने हैं? उसमें से कैश सेल्स कितने हैं? बोल तो क्रेडिट सेल्स कितने हैं? 2,60,000 का क्रेडिट सेल आया। दम लगा? व्हाट इज द एंट्री फॉर क्रेडिट सेल्स? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गो टू डेटर्स अकाउंट, डेबिट साइड सेकेंड लाइन, क्यों तो ओपनिंग बैलेंस लिखना बाकी है। टू सेल्स कितना? 2,60,000। हो गया यहां तक? हो गया यहां तक? मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि तुम लोग होशियार हो न, तुमको समझ में आ जाएगा, इसलिए बता नहीं रहा हूं। डेटर्स अकाउंट देखो और मेरे को बताओ क्या मिसिंग है। सब लोग देखो। डेटर्स में क्रेडिट सेल्स आते वो आ गए। डेटर्स में क्रेडिट सेल्स आते वो आ गए। कलेक्शन आ गया, डिस्काउंट अलाउ हुआ वो आ गया, बैड डेट्स आ गए, क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया है। क्या मिसिंग है? ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है। ओपनिंग के डेटा सही नहीं दिए हुए प्रॉब्लम में। सो नाउ इफ आई क्लोज डेटर्स अकाउंट, मिसिंग फिगर विल बी ओपनिंग बैलेंस. So first line debit side to balance brought down asterisk mark balancing figure. asterisk mark देना नहीं भूलना. Total is 2 lakh. So what is the missing figure? 18,000. जमया. अब ये कहां लेंगे अपन ओपनिंग डेटर्स? करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ओपनिंग बैलेंस शीट में डेटर्स की फिगर लिखनी बाकी है ना. लिख दो 18,000. जमते का. अगला अकाउंट कौन सा है? अगला अकाउंट इज क्रेडिटर्स. क्या मिसिंग है रे क्रेडिटर्स में? सब लोग देखो. टेक योर ओन टाइम, कोई घाई नहीं अपने को. ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग है, पेमेंट है, डिस्काउंट कितना अर्न किया वो भी है. क्या मिसिंग है? क्रेडिट परचेसेस एंट्री. परचेसेस टू क्रेडिटर्स बाय purchases account asterisk mark balancing figure. Total is 2 lakh. So what would be the cash credit purchases? 241,000. आया? सबका आया 2,41,000. Second effect, trading account 2,41,000. So what would be my total purchases? 251,000. हम 3,000 के रिटर्न जाके आउटर कॉलम 2,48,000. Which is the next account? Miscellaneous. सब लोग स्क्रीन पे देखो. सब लोग स्क्रीन पे देखो. मेरे को बोलो इस साल पे कितने हुए? बिना सोचे समझे आंसर देने की घाई इतनी है ना अपने को. मैंने पूछा क्या 600 है क्या? मैंने पूछा पे कितना हुआ है. पे कितना हुआ है? 5,000 पे हुआ है. उसमें से पिछले साल का कितना था? 1,000 था. ओपनिंग के आउटस्टैंडिंग कितने थे? 1,000.
इस साल पे कितने हुए, उसमें से पिछले साल का कितना था, बोल तो इस साल के लिए कितना पे हुआ, 4,000 पे हुआ। टोटल पेमेंट हुआ 5, उसमें से पिछले साल का था 1, तो इस साल के लिए कितना पे हुआ, 4 पे हुआ। प्लस इस साल का और आउटस्टैंडिंग कितना है, बोल तो टोटल खर्चा फॉर द ईयर 4,600। अब ये तो तुमको मैं कंसेप्चुअली बता रहा हूं इसलिए, नहीं तो सीधा सीधा हिसाब है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर, ये तो खर्चा ही है ना, पी एंड एल में ही जाने वाला है ना। कितना आता है एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर, 4,600 चाहेगा ना रे, झेपा क्या, वो 4,600 का लॉजिक समझा क्या। हम्म, फिर से एक बार, पे कितना हुआ, out of that for last year it was 1,000, so for the year paid 4,000 plus outstanding for the year 600, so what is the total expense for the year, 4,600, which goes to P and L account. By P and L 4,600. Second effect, P and L account debit side to how much, कैपिटल अकाउंट लास्ट में क्लोज होगा, अभी तो प्रॉफिट आना है जो भी है। नाउ क्लोज फर्स्ट वर्किंग नोट, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या मिसिंग है, ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, सो कैपिटल बैलेंस इज मिसिंग फिगर, फाइंड आउट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर कैपिटल। Total is 47,400, 60, missing figure is 47, सबका आया, सबने एस्ट्रिस मार्क दिया, पक्का। गो टू कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बोले आप, 47 आया। अब बेटा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो, पहले जीपी ढूंढो, फर्स्ट फाइंड आउट जीपी। टू ग्रॉस प्रॉफिट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर, total is 3,13,000, 3,13,000. What is the GP amount, 80, 51, 51. P&L account by gross profit 5151. ओ ओ ओ येते बाळांनो सगळे बाळ, टू नेट प्रॉफिट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर, टोटल 50, बैलेंसिंग फिगर 20,000, 29,400, एस्ट्रिस मार्क दिया सबने। कैपिटल में आओ, कैपिटल अकाउंट बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर
29,400. Close capital account, get the closing balance. To balance carried down. To balance carried down. Total is 76,800. Missing figure 66,7,400. कहाँ लेंगे इसको? क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल 67,400. टैली नहीं हो रहा? होना ही चाहिए, करेक्ट सॉल्व किया है तो. नहीं टैली हुआ तो कुछ तो गलत हो गया. एक साइड का टोटल लेके दोनों साइड पे नहीं लिखने का, दोनों साइड का अलग अलग टोटल करने का. 77 बोथ साइड्स टैलीड. ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखो बेटा, आया क्या तुम्हारा? अपने को लग रहा है ये बड़ा, कि तो पहली बार सॉल्व कर रहे थे. मैं डिटेल में एक एक चीज बता रहा हूं, इसलिए ये बहुत बेसिक है. इट वोंट टेक मच टाइम. तुम पहली बार सॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए तुमको लगता रहेगा क्या क्या कर रहे हैं. कुछ नहीं, अपन ने बेसिक जर्नल एंट्रीज के इफेक्ट्स दिए सिर्फ. तो ये बहुत फटाफट सॉल्व होगा जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी. बाय द टाइम वी कंप्लीट विद द टॉपिक ना, बाय द टाइम वी एंड विद द टॉपिक, तुम एकदम प्रोफिशिएंसी आ जाएगी. फटाफट होगा सॉल्व. हो गया टैली सबका? चलो देखो, एकदम से अभी मैं बोलूंगा कि तुमको जम जाएगा तो गलत हो जाएगा. प्रैक्टिस लगेगी इसकी. पर जो किया वो दिमाग में गया, क्या 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 कर रहे थे अपन. अलग कुछ नहीं हुआ, जो बेसिक इफेक्ट्स है वही देते गए. पहले पूरी दी हुई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली, और उसके बाद में फिर जो जो मिसिंग था वो हम ढूंढते गए. एक काम करते आज अपन, यही प्रॉब्लम होमवर्क करेंगे. क्या बोला, समझा क्या? डज दैट मीन कि जस्ट कॉपी कर लोगे? सॉल्व करोगे और कहीं अटक गए तो देखोगे सॉल्यूशन. पक्का? फिर नया प्रॉब्लम नहीं देता हूं आज, क्यों तो कल और प्रैक्टिस करेंगे, फिर होमवर्क दूंगा. यस. एनी प्रॉब्लम? जब तक एग्जाम में चेक करने वाले को समझ में आ रहा है तुमने क्या किया है, तब तक प्रॉब्लम नहीं. उसको ये फील नहीं आना चाहिए कि भिखारी की वसीयत लिखी है. कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग वैसी रहती, झेपताच नहीं क्या लिखा है. कर लोगे आज सॉल्व? सॉल्व करके ग्रुप पे मैसेज डालने का, डन बोल के. यस. विदाउट फेल सॉल्व करो बेटा. ये टॉपिक नहीं तो तुमको बहुत सताएगा बाद में, टाइम भी बहुत खाएगा तुम्हारा, सताएगा भी बहुत. तो इसको बहुत सीरियसली लो, रोज के रोज करो जो बोल रहा हूं. एवरीबडी ट्राई इट. सी यू टुमारो. थैंक यू.